Hello everyone. I, Dr. Seema Tandon, Deputy Director RRTC, welcome Dr. Saroj Singh and thank you so much Sarojji for taking out time to take a session on anemia. Welcome Sarojji. So in this session, we'll be mainly discussing regarding the anemia and that too anemia in pregnancy. And you know that anemia is so important for us because a huge number of patients who are coming to us with during pregnancy or in the postnatal period, they are suffering from anemia. And a huge bulk of cases are having maternal mortality or morbidity or perinatal morbidity or mortality because of anemia. It may be directly because of anemia, or sometimes anemia associated with other conditions. It precipitates so that it increases the severity of the condition, whether it is preeclampsia or APH or PPH. Once patient is anemic, the complication and the seriousness increases. So we can say that anemia is the basic of majority of the problems which are occurring during pregnancy, and especially in our country where nearly 70% of our women are anemic. And if you see us who are working in medical colleges, the patients who are coming to us, I should say nearly 80-90% of the cases in obstetric labor room in our places are anemic, and to the extent 2 gram, 1 gram, so much bloated up cases. And it seems that this very simple condition, which can be very easily prevented, and so that we can decrease our maternal deaths and morbidity to a great extent. So it is very important that all of us should know how we can prevent anemia. And if our antenatal cases are having anemia, how we can manage it, treat them before they pass into labor, so that we save our mothers as well as our fetuses and the neonates from this particular condition. If we just see the definition, we know that for all others, anemia may be less than 12, but for our antenatal cases, if it is less than 11 grams, we take it as anemic. Otherwise, we take it as normal. And 7 gram is for the severe anemia. And in our country or in our scenario, the nutritional anemia, especially the iron deficiency anemia, is the one which is the most common one which we are facing. Although at some time we are facing the megaloblastic anemia where folic acid deficiency is also there, but iron deficiency anemia is the most common one. And then we have to manage these cases. We have to be alert for this at every time, whether we are sitting in antenatal clinic or in the adolescent clinic or in the postnatal clinic or in the labor room. Anemia should be at the base of our mind, that we have to manage this right from the beginning. So that definition, we know that for pregnant women, we take it 11 gram as the cutoff, while for men or for others, we take it 12. While severe anemia is when it is less than 7, and very severe when it is less than 4. But we should understand, if we understand the basic, कि anemia में क्या होता है, because we know that in blood we have two things. One is plasma, other is the red blood cells. And how these red blood cells are forming, it is having heme as well as globin part. Now this globin part is mainly found from the proteins. So for prevention of anemia, we need proteins also, while heme is mainly having the heme from the iron, and it also needs other things like vitamin A, vitamin C, folic acid, B12. These things are also required to prevent anemia. So whenever we are managing anemia, our focus should be for all these things. Not only iron is not going to suffice for our cases. The basic things from which red blood cells are being formed, from which they are being having heme, which is the oxygen carrying pigment, which is carrying oxygen to all tissues. All these things have to be managed, and then only this anemia will be corrected. That we should understand very well before we discuss what is anemia and how we are going to manage it. So if we see causes of anemia in our country, and we know that iron deficiency anemia is the most common one. And why it is most common one? Because
Sometimes we can say that hookworm infestation is quite common, and that can lead to iron deficiency anemia. Sometimes because of our female, our girls or our patients having menorrhagia leading to deficiency and or dietary deficiency of iron, that may be the reason. But the iron deficiency is very common, anemia is very common in our population. Then even deficiency of vitamin A, vitamin B12, B6, vitamin E, C, folic acid, because these are very essential components for the formation of heme iron, and if they are deficient, it can lead to anemia. And then other causes like malaria. We know that malaria is very common in our country, and that leads to hemolysis of red blood cells. And if hemolysis is more, it can definitely lead to deficiency of hemoglobin. Then due to infections, due to chronic diseases like renal failure, that can also lead to anemia. If we see the pregnant women, why they are becoming anemic, of course, these nutritional causes are there. If we start right from here, we know that nutritional causes are there, but sometimes multiparity, yes, no gap between two pregnancies. एक बच्चा 1.5 साल का, दूसरे फिर 6 months की pregnancy, and that scenario is very common. Abortion, उसके बाद even infertility के treatment के लिए आ जाएंगे कि 3 months हो गए अभी तक pregnancy नहीं हुई. So these are few other factors which leads to anemia in these cases. During pregnancy, of course. Then acute blood loss. Maybe that a patient was already 9 gram or 8 gram, and then she had acute blood loss, whether it is antepartum hemorrhage or postpartum hemorrhage. And then her hemoglobin from 8 grams, it comes to 4 grams, 3 grams. And so acute blood loss may be another factor. Recurrent infections, especially urinary tract infection. We have to remember it very well. Urinary tract infection, because erythropoiesis, for erythropoiesis, we need kidneys also to function properly. Erythropoietin is being formed there. Then in PIH, thalassemia. Yes, thalassemia is another hemoglobinopathy which is not very uncommon in our population, and now it has become a trend for those who can afford very well. It is better to get thalassemia profile done, even not only during pregnancy, even before marriage, so that if they are thalassemia minor, it is better not to marry a person who is also thalassemia minor, because if both are minor, again problems will be there. So that also has to be managed even before that, and it's quite common. Aplastic anemia, although it is very rare. Now, how these cases present to us? It depends on its severity, but we know that when we are sitting in our OPDs, many times our patients may be asymptomatic, and just by seeing them that they are having bloat, the edematous, their tongue is pale, their nails are pale, their palate is pale. These are the sites where we look for the anemia. But she herself may be totally asymptomatic. But if condition is severe, if she is severely anemic, then these cases may have symptoms, and symptoms may be in the form of कि बहुत जल्दी थक जाते हैं, breathlessness हो रही है. Breathlessness, again, it changes according to the severity. बहुत ज़्यादा होगा तो it may be that she may be even breathlessness when she is talking to you, or you can see that she is having swelling all over the abdomen, all over the body. So these are the things which tell us ki anemia hai, and we can assess them. I think these things, majority of us can very well assess that these are the patients who are anemic. Then few signs we can elicit, like raised jugular venous pressure. If we patient ko reclined position में रख के उसके liver वाले area में press करें, and then we can see the jugular veins being prominent, and that shows that the jugular venous pressure is raised. And many times tachycardia, tachypnea, and if she is in CHF, then of course there may be fine cracks on the base of the lungs that we can observe. Hepatosplenomegaly, malaria bhi hai saath mein, to bhi, or CHF mein hai, even then we can find this. Then of course edema we have to demonstrate in these cases. एक चीज और बहुत याद रखनी होती है, that those patients who are on bed, if we want to demonstrate edema, where we have to look for, पैरों में नहीं देखना है, because it may be that she is lying on bed, so edema on the sacrum, because this is the most dependent part. There we have to see. Otherwise, we know that medial malleolus, the anterior shin,
These are the sites जहाँ हम लोग edema के लिए देखते हैं. And many times on the anterior abdominal wall, the shining of abdominal wall shows. और even आप fitting करके देखें तो that also you can find. So recognition of anemia, I don't think it is very difficult because we all are doing it quite nice. The only thing which we have to assess is severity कितनी है. वो assess करना clinically, that is important. Because it may be a patient is only 9 or 8 grams, or it may be she is 2 grams. So that assessment is more important. कि anemic तो है, लेकिन severity कितनी है? CHF में तो नहीं है, cardiac failure में तो नहीं है. Those things are very important because according to that you have to assess कि उसका मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, ओरल ड्रग्स पे करना है, पेरेंटल पे करना है, ब्लड लगाना है. दैट असेसमेंट है. So assessment of severity is clinically we assess करना है, that is very important. Then of course when में हुए तो भी आपको assess करना है. Or these are simple signs. Sometimes you can find brittle hair, glossitis, etc. सवाल अब ये है कि why we are so much worried about anemia? Because anemia, once our patient is anemic, it is not only so कि अनीमिया की वजह से प्रेगनेंसी में चेंजेस आएंगे, बट फीटस पे भी आएंगे. तो प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम? बिकॉज हमें अच्छी तरह पता है कि जब उसका खून कम है, सिंपल लैंग्वेज में जब उसका खून कम है तो नेचुरली फीटस का डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से कम होगा, छोटा होगा बच्चा. प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? बिकॉज अनीमिक है तो प्रैक्टिकली सभी कॉम्प्लिकेशन जो भी प्रेगनेंसी ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन है, दे इंक्रीज, or we can say if they are present their severity increase. That is more important. In case उसको pregnancy induced hypertension है या preterm labor है, ये सब इनकी severity बहुत increase कर जाएगी because उसको anemia साथ में है. That is a precipitating factor. Preterm labor is quite common because of the anemia, it can be there. Then infections, urinary tract infections or sepsis or infection, even if a patient episode में लगी है या डिलीवरी के बाद endometritis हो रही है, these are very common because anemia की वजह से infection ज़्यादा होंगे. यूट्रस का सब इन्वॉल्यूशन होगा, इन्वॉल्यूट नहीं कर पाएगा ठीक से. पीपीएच की रिस्क ज्यादा है, और मोर इम्पोर्टेंट शुड आई से कि पीपीएच की टॉलरेंस बहुत कम है. अदरवाइज 500 और 1 लीटर ब्लड लूज करने पे पेशेंट, it hardly there is any change. But if a patient is already anemic, तो थोड़ा blood loss करने के बाद भी her severity increases to a great extent. So that is more important. So severity becomes more. Then in these cases, all of us have faced maternal death also, whether it is because of CHF or it is because of sepsis or cerebral anoxia, thromboembolism, sometimes cardiac failure. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो अनीमिया वाले पेशेंट्स हैं, इनमें द पोस्टपार्टम पीरियड इज मोर इम्पॉर्टेंट. इट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट टू ऑब्जर्व rather than during pregnancy, because this is the time when because of the uteroplacental circulation सारा increase हो जाता है, वापस आ जाता है, तो CHF में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सेप्सिस के चांसेस तो हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के हैं. सो बिकॉज पोस्ट delivery period is very critical period in these cases, and we should be very alert at that time, because otherwise delivery के बाद usually patients 24 घंटे बाद 48 घंटे बाद घर चले जाते हैं. but these cases who are anemic, they have to be kept under observation because that is the risky period for them. We can see it here also. The most critical period in these cases is one time is 28 to 30 weeks of pregnancy, because that is the time जहाँ plasma volume maximum हो चुका है, maximum उसे circulation चाहिए. Secondly, जब labor में है, because so many changes are occurring in the body. Thirdly, immediately after delivery and early postpartum, even up to 6 weeks, we have to be observed. We have to observe these cases. But शुरू के एक हफ्ते तो observation is very very important in those cases who are anemic. फीटस में क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं? ऑल्दो अबॉर्शन के चांसेस भी रहते हैं, बट मेन थिंग इज कि इन केसेस में प्री टर्म लेबर या ग्रोथ रिटार्डेड बेबी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं बिकॉज ऑफ अनीमिया, एंड समटाइम्स इट कैन इवन लीड टू इंट्रा यूट्राइन डेथ.
So that's why we have to be so alert कि हमारे पेशेंट्स में अनीमिया तो नहीं है, और यदि है तो उसको शुरू से ही ठीक करते चलें. Even anemic infant can have cognitive effects later on, or sometimes perinatal morbidity or mortality भी हो सकती है. So we can see कि anemia is affecting the mother as well as fetus, and it is affecting during antenatal period, intranatal period, and then even in the postnatal period and fetus we have to observe in that entire perinatal period we have to observe, because that time is also risky for them. So careful observation, careful management is very important for preventing and managing anemia. चलिए अब इसका मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं. मैनेजमेंट बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी हमें अनीमिया का मैनेजमेंट करना है, बिकॉज आवर बेसिक एम इज कि हम उसका हीमोग्लोबिन जल्दी से जल्दी ठीक करें, जिससे कि जो बच्चे को, बिकॉज बच्चे को मदर ब्लड कहाँ से मिल रहा है, मदर के मैटरनल साइनसेस से ही उसे ऑक्सीजन मिल रही है. यदि मदर अनीमिक है तो ऑक्सीजन एक्सचेंज जो हो रहा है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन पे, दैट विल बी डेफिशिएंट. और जब बच्चे को डेफिशिएंट प्लेसेंटल मेम्ब्रेन पे एक्सचेंज मिलेगा ऑक्सीजन का, तो डेफिनेटली बच्चे का डेवलपमेंट कम होगा. सो आवर एम शुड बी दैट एज अर्ली एज वी कैन करेक्ट अनीमिया, दैट इज द बेस्ट. और स्पेशली लेबर तक तो 100% उसे करेक्ट करना ही है बाद में भी. सो इट डिपेंड्स कि कब हमारे पास पेशेंट आई फर्स्ट टाइम और कब हमने उसका करेक्शन किया. जब हमारे पास पेशेंट्स आती हैं, यदि वो फर्स्ट टाइमिस्टर में आ गई हैं तो वी आर वेरी लकी कि हमारी पेशेंट हमारे पास फर्स्ट टाइमिस्टर में ही फर्स्ट विजिट के लिए आ गई. बट समटाइम्स दे कम लेट, बट व्हेनेवर दे कम, इवन ऑन द फर्स्ट विजिट, हमें उसका हीमोग्लोबिन कराना ही है. आई थिंक ये तो सभी जगह कराया ही जा रहा है, सब लोगों को पता भी है कराना है. लेकिन जो शुरू वाले 12-14 हफ्ते हैं, उस समय इवन इफ थोड़ा अनीमिया यदि है भी, तो हम लोग आयरन वगैरह देना यूजुअली अवॉइड करते हैं, बिकॉज दैट इज एटलीस्ट 8 to 10 वीक्स वाला टाइम इज दैट इज द पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस. उस समय हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा दवाई देना यूजुअली प्रेफर नहीं करते. तो अनीमिया के लिए जो आयरन या जो भी दवा हमें देनी है वो हम लोग प्रेफर करेंगे कि हम 14 वीक्स ऑनवर्ड्स दें. तो इन केस 14 वीक्स, जस्ट नियर अबाउट 14 वीक्स हमारी पेशेंट आई है, तो बेसिक कंसेप्ट हमें अनीमिया के मैनेजमेंट में ये ध्यान रखना है कि हमें उसे आयरन भी देना है, हमें उसे विटामिन B12 और विटामिन C की जो टेबलेट्स हमारे सेंटर्स पे मिलती हैं वो भी देनी है, और विटामिन A भी देना है. और डिपेंडिंग ऑन दिस की सीवियरिटी कितनी है, देन वी विल डिसाइड कि हमें ओरल आयरन से काम चल जाएगा या पेरेंट्रल आयरन देना है, या फिर बहुत सीवियर है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में सोचेंगे. ये हमारे पास 3 मेजर यही हैं: ओरल आयरन, पेरेंट्रल आयरन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो हमें क्या चूज करना है, ये हमारा इस पे डिपेंड करेगा कि उसका हीमोग्लोबिन कितना है और वो किस समय हमारे पास प्रेजेंट करे. जो हमारे सेंटर्स पे IFA की टेबलेट्स मिलती हैं, उनमें हमें पता है हमारे पास आयरन रहता है 100 मिलीग्राम, और फॉलिक एसिड है 0.5 मिलीग्राम और 500 माइक्रोग्राम यू कैन से. B12 है 15 माइक्रोग्राम, और उसमें विटामिन C भी है. ठीक है. और अनीमिया वाले केसेस में फिर हम साथ में एल्बेंडाजोल भी देते हैं डीवर्मिन की तरह, और ये आप लोग प्रोफाइलेक्टिकली वैसे भी देते हैं. तो जिन केसेस में अनीमिया नहीं है, उन केसेस में यही IFA की टेबलेट हम लोग सिंगल टेबलेट देते हैं. जो केसेस अनीमिक हैं, उनमें हमें कितना देना है, यही टेबलेट थेरेप्यूटिक डोज, दैट मींस BD देंगे. तो जब पेशेंट हमारे पास 14 वीक्स के आसपास आ गई है और अनीमिक है, यदि इसमें भी हमें याद रखना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें केवल उन्हीं केसेस के लिए सोचना है जिनमें हीमोग्लोबिन 7 से कम है. उनमें भी सबके लिए नहीं जरूरत है, उनमें भी वी हैव टू सिलेक्ट. बट 7 से ऊपर है तो यूजुअली वी डोंट नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ठीक है. 7 से कम वालों में वी हैव टू सिलेक्ट कि हाँ हमें ब्लड की जरूरत है या नहीं. अदरवाइज हमारे पास टाइम है या प्रेगनेंसी का काफी, तो वी कैन मैनेज देम विद अदर मेजर्स आल्सो. तो ओरल आयरन, ओरल ट्रीटमेंट जब भी हमें देना है तो सेम टेबलेट्स डबल डोज में हम दे देंगे, तो विल बी एबल टू मैनेज. And blood transfusion only for those cases where we are not able to manage them by parenteral or oral. Now, when
16 वीक्स के बाद तो पेरेंटल आयरन इधर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगेन विल प्रिफर, बिकॉज जब हमारे पास टाइम काफी है, मीन्स इवन अप टू 32-34 वीक्स हमारे पास टाइम काफी है, वील ऑलवेज प्रेफर कि हमारी पेशेंट ओरल आयरन पे ही मैनेज हो जाए। बिकॉज पेशेंट यदि ले सकती है ट्वाइस अ डे डबल डोज में आयरन वाली प्रिपरेशंस, और हमारे पास टाइम है, अभी डिलीवरी में समय है, तो ओरल आयरन इज गुड इनफ। बट इन केस पेशेंट हमारी 32 वीक्स के बियॉन्ड है, जब हमें पता है कि अभी डिलीवरी में बहुत समय नहीं है, या हो सकता है वो प्रीटर्म लेबर में ना पास हो जाए, देन वी वांट कि उसका हीमोग्लोबिन जल्दी इंप्रूव करे। देन एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन दिस कि पेशेंट हमारी ओरल आयरन कितना उसको एक्सेप्टेंस कितनी है, कितनी अच्छे से वो लेती है और कितने अच्छे से टॉलरेट कर रही है, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो 16 to 32 वीक्स में यूजुअली ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोग नहीं प्रेफर करते, एंड वी मैनेज बिटवीन दिस ओरल आयरन एंड सपोर्टिव मेडिकेशन। और यदि ओरल आयरन नहीं टॉलरेट कर पा रही है तब पेरेंटल की सोचेंगे, अदरवाइज ओरल आयरन से भी हमारा पेशेंट आराम से मैनेज कर सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास काफी टाइम है डिलीवरी के लिए। और बट वी विल अश्योर कि वो जो आयरन हमने दिया है वो रिलीजियसली अच्छे से ले रही है, ठीक है। लेकिन 7 से कम है तब हमें ऑफ कोर्स पेरेंटल आयरन देना ही पड़ेगा, बिकॉज हमें जल्दी से इम्प्रूव करना है, ये भी हम नहीं चाहते कि हमारा बेबी लो बर्थ वेट रह जाए, ठीक है। देन बट इफ केस इन केस आवर पेशेंट कम्स टू अस 36 वीक्स के बियॉन्ड आती है, वी नो कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, पेशेंट मे पास इनटू लेबर इन अ वीक और 2, देन ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि जल्दी हमारे पेशेंट का ठीक हो, तो देन डेफिनेटली 7 ग्राम से कम वालों में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा 32 वीक्स के बाद। और 7 और 9 के बीच में है तो पेरेंटल आयरन वी कैन थिंक ऑफ। एंड पेरेंटल आयरन लगाना हमने आप लोगों के साथ बहुत बार डिस्कस किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग लगाने लग गए हैं, और आई थिंक दैट इज नॉट अ वेरी बिग इशू, और आराम से इसको आपके सेंटर्स पे भी लगाया जा सकता है। जब भी हम पेरेंटल आयरन देते हैं तो क्या लगाते हैं, आयरन सुक्रोज बहुत कॉमनली बहुत आराम से लगाया जा सकता है, और आयरन सुक्रोज आप लोगों के सेंटर्स पे अवेलेबल भी है। इसको हम लोग लगाते हैं 100 ml नॉर्मल सलाइन में, और विद इन 20 to 30 मिनट्स लगा देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत स्लो 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 नहीं चलनी है, 20 to 30 मिनट्स में फिनिश कर देना है। मतलब 2 एम्प्यूल डाले हमने, और 20 to 30 मिनट्स में दैट सलाइन, दैट 100 ml सलाइन शुड बी फिनिश्ड। बिकॉज आई हैव सीन एट सम प्लेसेस कि बहुत धीरे से लगा दिया कि ड्रॉप्स में चल रहा है, ऐसा नहीं, इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 20 to 30 मिनट्स। और ऑफ कोर्स जब पेरेंटल आयरन दे रहे हैं तब उस पेशेंट में उनके साथ हम ओरल आयरन तो नहीं देंगे, बट लेकिन B12 और विटामिन सी हमें देना पड़ेगा साथ में, बिकॉज ये दीज आर ऑल्सो सप्लीमेंट्स, इट हैज टू बी एडेड। आई थिंक इन केसेस में जिनमें हम लोग आयरन का ट्रीटमेंट, अनीमिया का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें उनको जो सिंपल मेजर्स हैं जो हम अपने ओपीडी में बैठ के पेशेंट्स को बताते हैं, जो काउंसलिंग करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि प्रोटीन रिच डाइट कैसे लेनी है, सिर्फ प्रोटीन रिच कहने से काम नहीं चलेगा, उसे बताना पड़ेगा कि दाल तुम 2 कटोरी लो, दोनों टाइम लो, प्लस उसको वो मेथड, इवन वी कैन सजेस्ट गुड़ ले लो, चना ले लो, बिकॉज दीज आर थिंग्स विच आर वेरी चीप, और जो ज्यादातर रूरल एरिया वाले पेशेंट्स को आराम से मिल जाती हैं। सिंपल तरीका, गुड़ चना ले लो, मूंगफली लो, दाल ज्यादा लो, दीज थिंग्स वी हैव टू सजेस्ट देम। अदरवाइज सिर्फ ये कहना कि प्रोटीन ज्यादा ले लो, उनको तो नहीं समझ में आएगा। वी हैव टू सजेस्ट देम दी थिंग्स क्या लेनी है, अखरोट ले लो, मूंगफली ले लो, ये सब उसे सजेस्ट करना पड़ेगा। डेट्स ले लो, खजूर ले लो, एंड हरी सब्जियां खाओ, ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो पनीर ले लें। So these things we have to suggest them in addition to the drug treatment which we are giving. Supportive things are very important. Now इसको यदि हम इस फ्लो चार्ट में देखें, बहुत सिंपल सा एनीमिया को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, तो इधर स्टार्ट करें। यदि देखिए 7 ग्राम से कम है, तो 7 ग्राम से कम वालों में जिनका 5 से भी कम है, वो irrespective of gestation period we will admit them, because these are the cases which may pass into CHF लेटर ऑन, तो इनको बेटर है कि हॉस्पिटलाइज करके मैनेज करें। और जो 5 to 7 के बीच में, उनमें आप पेरेंटल आयरन देके, और यदि आपको लगता है कि आपके सेंटर में पेरेंटल आयरन नहीं दिया जा सकता या आप मैनेज नहीं कर सकते, तो बेटर
रेफर देम, है ना, बिकॉज इनका यदि नहीं अनीमिया इम्प्रूव करेगा तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी उनका अनीमिया और बढ़ेगा। एक बार को रिवाइज करें कि क्यों बढ़ेगा, बिकॉज फीटस के डेवलपमेंट के लिए, प्लेसेंटा के डेवलपमेंट के लिए, देन मैटरनल ब्लड वॉल्यूम, यू नो कि मैटरनल प्लाज्मा वॉल्यूम भी बढ़ता है, मैटरनल सेल्स भी बढ़ते हैं, आरबीसीज का वॉल्यूम भी बढ़ता है, एंड ऑल दिस नीड आयरन ऑल्सो, ऑल दिस नीड्स अ नंबर ऑफ थिंग्स. So if we are not managing, as pregnancy goes on, gradually anemia will become more and more and more severe, because that much is the iron and other things which are required during normal pregnancy. So deficiency will occur if we are not managing. So that is important. So those cases जिनमें अनीमिया बहुत सीवियर नहीं है, माइल्ड है या मॉडरेट है, या जिनमें माइल्ड है तो ऑफ कोर्स जो हमारे पास आईएफए की टेबलेट्स हैं उन्हीं को हम बता दें, डबल खाते रहो, चल जाएगा काम. लेकिन जिसमें मॉडरेट है, देन अगेन इट डिपेंड्स कि पीरियड क्या है उसका, जेस्टेशन का. इनिशियली आपने उसको थोड़ा भी सीवियर है 7 to 10 के बीच में भी है तो आप उसको पेरेंटल आयरन लगा दीजिए, बिकॉज इट इज सेफ, जल्दी से ठीक हो जाएगा एंड फीटस का डेवलपमेंट भी बेटर हो जाएगा. एंड उसको फॉलो अप कैसे करना है, हीमोग्लोबिन दोबारा करा के देख लेंगे. यदि उसका हीमोग्लोबिन का राइज प्रॉपर नहीं हुआ है, देन यू कैन रेफर देम टू दी FRUs या DH, जहाँ भी रेफर करना चाहें. सो कुल मिला के ये हुआ कि हमें अपने पेशेंट्स का अनीमिया, हीमोग्लोबिन पहली बार में ही चेक करना है. फर्स्ट थिंग, हीमोग्लोबिन बिल्कुल ठीक हो तो भी उसे आयरन की टेबलेट्स देनी है. हीमोग्लोबिन नहीं ठीक है, कम है, तो उसे डबल डोज दे देनी है. और हीमोग्लोबिन ज्यादा कम है तो उसे पेरेंटल आयरन के लिए सोचना है. और पेरेंटल आयरन बेझिझक बेधड़क लगाना है, कोई इसमें ज्यादा डरने की बात नहीं है. कैसे कैलकुलेट करना है, कितना हम लगाएंगे, वो भी हम बात करेंगे. पर पहले लगाने की बात करें तो आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन आप सब लोगों के यहाँ उपलब्ध हैं. इवन FCM भी आई थिंक बहुत जगह उपलब्ध होने लग गया है. आयरन सुक्रोज में हमें बस ये ध्यान रखना है कि एक बार में हम 200 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं देंगे. एक बार में जो हमें 100 ml सलाइन में देना किसमें, 5% डेक्सट्रोज में नहीं देना, 100 ml सलाइन में देना है. नॉर्मल सलाइन की बॉटल्स आती है, नॉर्मल सलाइन सब जगह उपलब्ध है. और एक बार में 200 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं देना. जो एक एम्प्यूल है वो 100 मिलीग्राम का होता है, यूजुअली 50 मिलीग्राम पर ml वाला होता है, तो इसमें 100 मिलीग्राम का एक एम्पूल होता है, तो 2 एम्पूल यूजुअली डालने पड़ते हैं. और इन्फ्यूजन 20 से 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए. इसके इन केसेस में सबकुटेनियस या इंट्रामस्कुलर सेंसिटिविटी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. सिर्फ आईवी वाले को ही इनिशियली आप थोड़ा स्लो दे दीजिए. शुरू के 5 मिनट 20-30 ड्रॉप्स पे रखिए, उसके बाद अपना 80-90 ड्रॉप्स. सो इनिशियल वाला वही इन्फ्यूजन थोड़ा सा स्लो, बाद में उसका प्रॉपर डोज. सबकुटेनियस या सेंसिटिविटी टेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. ओरल आयरन उन दिनों में जिनको पेरेंटल आयरन दे रहे हैं उन्हें ओरल आयरन देने की जरूरत नहीं है. और ऑफ कोर्स जब आप ये लगा रहे हैं आयरन इन्फ्यूजन, तो इम्पोर्टेंट है कि उस समय उनका पल्स, बीपी चेक रखें. और जब आपने शुरू वाले 5 मिनट्स एक बार लगाने के बाद फिर से चेक कर लें एंड देन उसके बाद लगा दें. ऑफ कोर्स इमरजेंसी ट्रे आपके पास हमेशा रहनी चाहिए इसके लिए. और उसमें क्या क्या रहना चाहिए, एड्रेनलिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन या एफकॉर्लिन वाला इंजेक्शन वाइल, एंड ऑक्सीजन, बिकॉज जब भी कोई रिएक्शन हो या कुछ हो तो आप हाइड्रोकॉर्टिसोन लगा सके. हालांकि अभी हमें इतने साल हो गए पेरेंटल आयरन सुक्रोज लगाते हुए, आई हैव नेवर सीन एनी रिएक्शन विद आयरन सुक्रोज. तो आयरन सुक्रोज से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. इवन कुछ लोग तो डायरेक्ट आईवी भी लगा देते हैं, कोई डरने की बिल्कुल भी इसमें बात नहीं है. मतलब आपको तो इन्फ्यूजन में ही लगाना है, बट इसमें रिएक्शन होने के चांसेस नियरली नील. और दूसरा ये कि जो दूसरी डोज लगनी है वो देयर शुड बी अ गैप ऑफ 2 to 4 days. तो यूजुअली ये रखते हैं कि वीक में 2 डोज लग जाएं या वीक में मैक्सिमम 3 लग जाएं, वो नहीं आ सकते. वीक में 2 इज सफिशिएंट. सो दैट इज, तो 200 मिलीग्राम से ज्यादा एक बार में नहीं लगाना. और बीच में 2 दिन का गैप दे दीजिए, हफ्ते में 2 डोज लगा दीजिए. अच्छा, अब एक और नई प्रिपरेशन आई है आयरन कार्बोक्सी माल्टोज, जिसको हम लोग FCM भी बोलते हैं. ये जो है इसमें एडवांटेज ये है कि आप एक ही बार में 1000 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो रोज रोज
सेंटर पे नहीं आ सकते, बिकॉज 200 मिलीग्राम वाले को पेशेंट को बार बार हर हफ्ते में 2 बार तो आना ही पड़ेगा। इसमें एफसीएम को आप एक ही बार में 1000 मिलीग्राम दे सकते हैं, दैट इज इट्स एडवांटेज। ऑल्दो इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, बट इम्पोर्टेंट थिंग है कि इट डज नॉट क्रॉस रिएक्ट विद द टेक्स्टन एंटीबॉडीज, इसलिए इसमें भी टेस्ट डोज की जरूरत नहीं है और आप एक ही बार में 1000 मिलीग्राम लगा सकते हैं और बाद में फिर इसको सीरम फेरिटिन करा के देख लेते हैं। इसमें हालांकि लिखा हुआ है कि एंटीपार्टम में लिमिटेड डेटा अवेलेबल है, बट हम लोग तो डिपार्टमेंट में भी काफी एंटीनेटल केसेस में भी लगा चुके हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इफ यू आस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एफसीएम एंटीनेटल केसेस में भी आराम से दिया जा सकता है। पोस्टनेटल के लिए तो इट इज अ बून, बिकॉज डिलीवरी हो गई, आपने देखा हीमोग्लोबिन 4 ग्राम है, रोज डोज वो आ नहीं पाएगी, एक ही बार डोज लगवा दीजिए एंड लेट हर गो होम। सो दैट इज वेरी गुड ड्रग फॉर पोस्टनेटल केसेस, जिसमें आपने एक बार लगा के भेज दिया। अदरवाइज एंटीनेटल में भी कैन बी। ये है कि पेरेंट्रल आयरन की हम लोग डोज कैसे कैलकुलेट करें, बिकॉज हमें देखना पड़ेगा ना कि कितने एम्प्यूल्स हमारे एक पेशेंट में चाहिए। तो जो आयरन सुक्रोज रूटीन में हम लगाते हैं, इसमें रिस्पॉन्स जो रहती है, हीमोग्लोबिन लेवल राइजेस बाय 1 ग्राम पर वीक। इसको हम लोग इनिशियली तो हीमोग्लोबिन लेवल से देखते हैं, लेकिन 5 से 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद उसकी रेटिकुलोसाइट काउंट भी बढ़ जाती है। दैट इज अनदर वे टू असेस कि हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो गया या नहीं। और क्लिनिकल सिम्टम्स तो डेफिनेटली उसके इम्प्रूव करेंगे, दैट यू कैन असेस बाय क्लिनिकली असेसिंग योर पेशेंट। सिंपल तरीका इसको कैलकुलेट करने का ये है कि बॉडी वेट इन किलोग्राम, इसको मल्टीप्लाई करते हैं जो हीमोग्लोबिन डेफिसिट है। डेफिसिट मीन्स यदि हमारे पेशेंट का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम है तो हमें उसको 11 से माइनस करना है। 11 माइनस 7 दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 2.4, ये तो हमारा टोटल आयरन डेफिसिट आएगा। प्लस 1000 जो हमने ऐड किया है वो हमने आयरन स्टोर्स के लिए किया है, बिकॉज ये जो एनीमिक पेशेंट्स होते हैं इनके आयरन स्टोर्स भी बहुत पुअर होते हैं, एंड वी वांट कि हम अपने पेशेंट को जब आयरन दे रहे हैं तो इतना दें कि उसका अभी के लिए सफिशिएंट हो, प्लस स्टोर्स भी बन जाए, बिकॉज यही पेशेंट आगे डिलीवरी भी होगी, तभी भी ब्लड लॉस होगा, फिर उसको लैक्टेट भी करेगी। सो वी वांट कि उसके स्टोर्स भी ठीक हो जाएं, तो दैट्स व्हाई वी हैव एडेड 1000 टू इट। तो और बेटर रहता है कि हमें वेट के लिए, यदि हमारे पास प्री प्रेगनेंसी वेट है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर यूजुअली प्री आई डोंट थिंक कि हर बार हमारे पास होता है। जो भी वेट अभी है उसको भी ले लो तो चलेगा। फर्स्ट विजिट वाला ले लो, यदि आपके एंटीनेटल कार्ड में लिखा हुआ तो फर्स्ट विजिट वाला ले लीजिए। और टारगेट हीमोग्लोबिन हम 11 रखेंगे, तो डेफिसिट कैसे निकलेगा, 11 माइनस जो भी उसका अभी है, और 1000 इज फॉर स्टोर्स। स्टोर्स में भी जो 35 केजी वाली है उसके लिए है, और यदि वेट लेस है तो वी कैन, बट आप सिंपल 1000 ही रखें हर केस के लिए तो भी चलेगा। साइड इफेक्ट्स बहुत कम ही कभी ऐसा होता है कि साइड इफेक्ट्स इन केसेस में हो, कभी कभी थोड़ा बहुत स्किन रैश या थोड़ा बहुत हल्का लो ग्रेड फीवर, कभी कभी आर्थ्रेल्जिया कभी कभी हो सकता है, कभी कभी, बट दैट दीज थिंग्स आर सो इनसिग्निफिकेंट कि इन केस है कुछ तो आपने पैरासिटामोल दे दिया, आपने एंटी एलर्जिक कुछ वो सिट्राजिन टाइप दे दिया तो ठीक हो जाता है। मतलब इट्स नॉट सिग्निफिकेंट एट ऑल टू बी कंसिडर्ड, ओकेजनली हो सकते हैं। एनाफाइलेक्सिस इज वेरी 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 रेयर। अब बात करें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी कितने सेंटर्स पे अवेलेबल है या ब्लड बैंक्स हैं, आई डोंट नो, बिकॉज सब जगह तो शायद नहीं है, लेकिन जहाँ भी हमें ये पता होना चाहिए बेसिकली कि किन केसेस में हमें ब्लड ही लगाना है, बिकॉज वो केसेस जिनमें हमें सीवियर अनीमिया 36 वीक्स या उसके बाद ही पता चला, बिकॉज अब हमारे पास ज्यादा टाइम ही नहीं है उसकी डिलीवरी के लिए। दीज आर द केसेस ऑफ हीमोग्लोबिन 7 से काफी कम है, 6 है, 5 है, तो ऑफ कोर्स वी वांट टू बिल्ड अप विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन सो दैट बिफोर डिलीवरी हम उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल की रेंज में ले आए। या फिर वो केसेस जिनमें एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है, लाइक एंटीपार्टम हेमरेज है या पोस्टपार्टम हेमरेज है, हुआ है हमारे पेशेंट में, और दोज केसेस हु हैव इन्फेक्शन, of course they definitely need blood transfusion. Then patients who are not responding for oral or parenteral therapy,
then patients who are symptomatic, and then there are few cases जिनके लिए हम ब्लड के लिए शुरू से मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि इनके लिए हमें ब्लड अरेंज करके रखना है, उनमें अनीमिक तो है, या दो वो केसेस जिनमें भी नो कि ऑन टेबल या डिलीवरी के समय ये ब्लीड करेंगे, जैसे आपकी पेशेंट ट्विन प्रेगनेंसी वाली है, यू नो दैट एटोनिक पीपीएच होने के चांसेस बहुत हैं, इसमें ब्लीड करेगी, तो इट इज बेटर कि पहले से ब्लड अरेंज करा के रखें या फिर उनके अटेंडेंट को बता के रखें कि यू मे नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर दीज केसेस एंड वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड, या दोज केसेस हु आर हैविंग प्लेसेंटा प्रीविया रप्चर, तो उनके लिए भी आपको ब्लड की जरूरत पड़ती है। आप आजकल जो है हम लोग ब्लड की बजाय चाहते हैं ब्लड कंपोनेंट्स देना। ब्लड की हम बात करें तो ब्लड में हमारे पास क्या क्या है, पीआरबीसी रहता है, दैट इज पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, हमारे पास पीआरबीसी रहता है, या फिर हम प्लेटलेट्स चढ़ा सकते हैं, या फिब्रोजन चढ़ा सकते हैं, या फिर इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो कंपोनेंट्स चढ़ाना जो है ज्यादा बेटर है, बिकॉज उसमें आप एक ब्लड से 4 पेशेंट्स को मैनेज कर सकते हैं रादर देन ब्लड गिविंग इट एज होल। बट दोज केसेस जिनमें एक्यूट ब्लड लॉस होता है उनमें यूजुअली ब्लड देना पड़ जाता है, बिकॉज उसमें हमें सारे कंपोनेंट्स भी चाहिए, ब्लड भी चाहिए, प्लाज्मा भी चाहिए, एंड अदरवाइज वी ऑलवेज प्रेफर कि कंपोनेंट थेरेपी दी जाए रादर देन ब्लड थेरेपी। तो अनीमिया वाले केसेस में कब हमें देना पड़ता है, इट इज नॉट ओनली दैट हीमोग्लोबिन शुड नॉट बी दी ओनली डिसाइडिंग फैक्टर, बट यह है कि जब ब्लड की जरूरत हमें ज्यादातर उन्हीं केसेस में पड़ती है जब हीमोग्लोबिन 7 से कम होता है। 7 से ऊपर वालों में यूजुअली वी अवॉइड या वी कैन अवॉइड गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिकॉज वी नो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अपने बहुत सारे खतरे हैं, एक्यूट भी हैं, सीवियर भी हैं, तो अनलेस वेरी इसेंशियल वी कैन अवॉइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो जिनका हीमोग्लोबिन 7 से कम है ऑफ कोर्स उनमें जरूरत पड़ सकती है, और उनका टाइम जो है डिलीवरी का पास में है, देन इन केसेस में पड़ सकती है। या फिर जिनका हीमोग्लोबिन हो सकता है 7 और 8 के बीच में हो, लेकिन वी नो दैट ड्यूरिंग सर्जरी इनका ब्लड लॉस ज्यादा हो सकता है, तो डेफिनेटली वी वांट टू बिल्ड अप फॉर देम। और दोस्त केसेस जो हमें पता है ड्यूरिंग सर्जरी ब्लीड ज्यादा कर सकते हैं, उसमें हम 8 ग्राम में भी चढ़ा सकते हैं, 9 में भी जरूरत पड़ सकती है चढ़ाने की, बिकॉज वी नो कि ड्यूरिंग सर्जरी ये पेशेंट ब्लीड कर, मान लीजिए प्लेसेंटा या क्रीटा का पेशेंट है, आपको ऑपरेट करना है, तो इवन 9 ग्राम पे भी आपको लगाना पड़ जाएगा कि ऑपरेट करने से पहले शी शुड नॉट बी एनीमिक, सो दैट अकॉर्डिंगली आप ब्लड लगा सकें। So it will depend majority of the time on hemoglobin, but sometimes on other things also, that what you are planning to do. Sometimes even up to 10 grams you may need, because acute blood loss है, तो 10 ग्राम भी रहा हो तो भी आपको ब्लड लगाने की जरूरत पड़ सकती है। और ब्लड लगाने के जितने भी उसको ध्यान रखने की चीजें हैं वो आई थिंक सबको पता है कैसे हम लगाते हैं ब्लड, सारे उसमें जो आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए फॉर्म गया है, जो ब्लड आया है उसके ऊपर चेक करके पेशेंट का नाम, उसका हस्बैंड्स नेम एंड ऑल दैट यू हैव टू चेक, क्रॉस चेक, देन यू हैव टू स्टार्ट इट अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। सो इसकी बात फिर किसी दिन हम डिटेल में कर सकते हैं। ये जो एनीमिया वाले पेशेंट्स हैं इनको हम लेबर में कैसे मॉनिटर करेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि एनीमिया वाले पेशेंट्स को लेबर में मॉनिटर करना होता है, बिकॉज दीज आर द केसेस who need supervision। आप बाकी केसेस को कह सकते हैं कि बाहर घूमते रहो, जब ज्यादा दर्द हो जाए तब आ जाना, बट नॉट टू those anemic patient, because they can pass into serious things anytime। So all these patients have to be supervised even in first stage of labor। इनको घूमते नहीं रहने देना है, इनको यूजुअली बेड पे भी रखना पड़ता है, एंड यू कैन सी बेड पे रखने में भी उसका शोल्डर्स रेज करके रखते हैं, बिकॉज इनमें लोगों में डिस्निया के चांसेस होते हैं काफी, तो उनको थोड़ा प्रॉपर पोजीशन में रखना पड़ता है। सेकेंडली हम इस फोटो डायग्राम इसमें भी देख सकते हैं कि उसको ऑक्सीजन भी लगी हुई है, सो दैट इज यू मे नीड इन दीज केसेस इंटरमिटेंट ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ती है, प्रॉपर रखना पड़ता है, बेड पे ही रखना पड़ता है, जिससे कि वो अननेसेसरी एक्सर्शन ना करें, अननेसेसरी डिस्निया में जाए। प्रॉपर काउंसलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज दीज आर द केसेस
जो अदरवाइज सिंपल दिखाई देते हैं, लगता है सब ठीक है, एंड व्हेन दे पास इनटू सीरियस थिंग्स यू डोंट नो। एंड जितनी भी हमारी मैटरनल डेथ इंट्रानेटल या पीएचसी सीएचसी पे सडन डेथ्स होती हैं, 90% ऑफ दोज केसेस आर अनीमिक, जिसमें कि पेशेंट के अटेंडेंस को लगता है सब तो ठीक था, फिर क्या हो गया। हुआ ये मेनली कि वो अनीमिक थी जिसको पहले काउंसलिंग नहीं की गई। यदि उन्हें पहले से समझा दिया जाए कि दीज प्रॉब्लम्स कैन अकर, दिस इज सीरियस, मैटरनल मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी और इवन नियोनेटल मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी की कंसेंट भी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज केसेस, कि उन्हें पहले से समझाया जाए, वो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहें कि पेशेंट हमारी सीरियस है। एंड प्रॉपर पोजीशन में रखा, इंटरमिटेंट ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ जाती है, एंड प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ जाती है। इन केसेस में वी यूजुअली वी गिव एंड वी अवॉइड repeated pervaginal examination because we want to avoid any infection. And if we are doing pervaginal examination, of course we do it with proper aseptic precautions, अच्छे से gloves पहन के, बीटाडीन से क्लीन करके, वल्वा भी क्लीन करके, एंड देन ग्लव्स भी चेंज करके। एंड देन हाँ, इन केसेस में आपको IV लाइन पेटेंट रखनी होगी, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन दिस पेशेंट मे बिकम सीरियस। तो IV लाइन चाहे फ्लूइड बहुत रेस्ट्रिक्टेड रखना है, फास्ट फ्लूइड नहीं देना है, बट restricted fluid just to keep the IV line patent and give intravenous antibiotic. और ज्यादा decompensated है तो डायूरेटिक ज्यादा नहीं है तो इट इज बेटर कि डायूरेटिक हम डिलीवर होने के जस्ट बाद दें, है ना। डायूरेटिक से बिकॉज दैट मे बी हैजार्डस टू द फीटस, अनलेस वेरी एसेंशियल, बट इफ इट इज एसेंशियल टू सेव पेशेंट, ऑफ कोर्स ब्रेथलेसनेस में है, क्रेब्स है, तो ऑफ कोर्स वी विल नीड टू गिव इट, but otherwise if we can avoid, deliver होते ही immediately तब दिया जाए। Second stage, our main aim is to cut short the second stage। ऐसा नहीं है कि हर केस में जरूरी है फॉर्सिप लगाना या वेंटूज लगाना, it is not essential, but main thing is that we want to cut short the second stage so that patient is not having exertion। और उस कट शॉर्ट में हो सकता है कि कुछ भी नहीं करना पड़े, because in these cases otherwise progress of labor is very fast। सर्वाइकल डायलेटेशन बहुत अच्छे से होता है, बहुत फास्ट होता है, यूजुअली यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, एंड इफ इट इज फास्ट ठीक है, कोई जरूरत नहीं है फॉर्सिप या वेंटूज लगाने की। और इट मे बी दैट बाय सिंपली बाय गिविंग एपिजोटमी you have cut short the second stage, and if needed then you can think of फॉर्सिप और वेंटू, because the main aim is कि पेशेंट को एक्सर्शन ज्यादा नहीं कराना है, दैट इज द मेन एम। थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट ऑफ कोर्स जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज का, इसमें भी करना है। क्या रिवाइज करें हम, क्या लगाना है हमें थर्ड स्टेज के लिए? इंट्रामस्कुलर ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट्स विद इन 1 मिनट ऑफ डिलीवरी लगाना है, कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन करना है, और तीसरा यूट्राइन मसाज करना है जिससे कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड रहे और एटोनिक पिपेश ना हो, वो हर केस में इसमें भी करना है। The only thing is मेथर्जिन हम लोग अवॉइड करेंगे, इन केसेस में नहीं दें। क्यों नहीं दें? बिकॉज मेथर्जिन कैन कॉज एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, और उससे जो है एकदम कार्डियक लोड बढ़ जाएगा एंड आवर पेशेंट में पास इनटू CHF। तो मेथर्जिन हम अवॉइड करेंगे, स्पेशली इंट्रावीनस मेथर्जिन बिल्कुल अवॉइड करेंगे। ऑक्सीटोसिन हम दे सकते हैं और जरूरत हो तो मीजोप्रोस्ट भी दे सकते हैं, बिकॉज वी वांट कि ब्लड लॉस भी ना हो और पेशेंट भी हमारे CHF में ना जाए। और डिलीवर होने के बाद फ्लूसमाइड और डायूरेटिक्स हम देंगे टू डिक्रीज द कार्डियक लोड, दैट इज इम्पोर्टेंट। बिकॉज जो 600 ml ब्लड प्लेसेंटा में जा रहा था, नाउ इट विल स्टार्ट गोइंग टू द हार्ट, सो कार्डियक लोड विल इंक्रीज और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से और इंक्रीज कर जाएगा। So it is third stage management is very 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 important in these cases, because this is the time when patient may pass into CHF। जो पहले नहीं थी CHF में, वो भी थर्ड स्टेज में CHF में पास हो सकती है। That's why जो आप इंट्रावीनस देना है फ्लूइड तो बिल्कुल एकदम रेस्ट्रिक्टेड रखना है, फ्लूसमाइड देना है और ब्लड लॉस के लिए ऑब्जर्व करना। अगेन फोर्थ स्टेज के लिए भी इसमें ऑब्जर्वेशन करना है। बाकी सब केसेस में यदि आप सिर्फ 1 घंटा ऑब्जर्व करते हैं, तो अनीमिया वाले केसेस में यू शुड ऑब्जर्व एटलीस्ट फॉर 5 to 6 hours, because these are the cases which may pass into CHF। इसलिए
पोस्टनेटल पीरियड में ऑब्जर्व करना, दे शुड नॉट बी इमीडिएटली शिफ्टेड टुवर्ड्स एनीमिया वाले पेशेंट डिलीवर होने के भी कम से कम 5-6 घंटे तक लेबर रूम या उसके आसपास वाले वार्ड में ही रहनी चाहिए, सो दैट यू कैन ऑब्जर्व हर प्रॉपरली एंड प्रिवेंट एनी CHF. ऑफ कोर्स बाद में आप उसको अर्ली एम्बुलेशन भी अलाउ करिए, हिमैटेनिक्स भी दे दें एंड ऑब्जर्व करना है उसके लिए सब इवोल्यूशन तो नहीं हुआ, सेप्सिस तो नहीं हुई, एंटीबायोटिक दिया इसके लिए. एंड इट इज बेटर दैट एट दिस टाइम काउंसलिंग उसकी इतनी अच्छी हो जाए कि उसकी स्पेसिंग बहुत अच्छी हो, सो दैट एटलीस्ट फॉर 2-3 years वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सके. और ये सब काउंसलिंग हम ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड भी कर सकते हैं और इमीडिएट पोस्टनेटल पीरियड में भी ये काउंसलिंग उनसे जरूर करनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फिर एज एनीमिक पेशेंट पास हो जाएगी एंड देन इट विल क्रिएट अनदर प्रॉब्लम. So these cases, lactational amenorrhea method, yes, that is quite good for them. Of course, if not, then barrier contraception तो है ही, but in cases में हम लोग DMPA आराम से लगा सकते हैं. I think DMPA will be very good for them because DMPA से उनको फिर amenorrhea भी हो जाएगा, तो that will save blood loss also. That is DMPA is intramuscular अंतरा के नाम से जो आपके पास इंजेक्शन आते हैं वो 6 हफ्ते के बाद लगाए जा सकते हैं. IUCD और परमानेंट स्टेरिलाइजेशन भी हो सकता है, यूज किया जा सकता है इफ दे एग्री, हीमोग्लोबिन उनका थोड़ा 7 से ऊपर हो तो परमानेंट स्टेरिलाइजेशन. बट IUCD लगाते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ज्यादा अनीमिक तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, वो सब प्रॉपर ध्यान रख के तभी लगाया जाएगा. सो दीज आर द केसेस, इफ प्रॉपरली हम लोग इन्हें मैनेज करें तो बेसिकली देखा जाए तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है, लेकिन जो खून कम है वो भी बहुत सारी बीमारियों की जड़ हो सकता है, इसलिए उसे हमें प्रिवेंट भी करना है और मैनेज भी करना है, सो दैट हमारी जो ये बेसिक चीज है वो ठीक होती चली जाए. थैंक यू सो मच.